So here we are starting aryl halides. Okay, we have completed alkyl halides. Now we are starting here is aryl halides. The word aryl halide will be used only when the halogen is attached to aromatic group. Okay, when halogen is attached to something that is aromatic, only then we can use this term aryl halides. So for us, aryl halide is PHX, okay, which could be PHCl, PHBr, PHI, PHF. As far as their IUPAC is concerned, they do not have any special name like toluene and all. They have normal name chlorobenzene, bromobenzene, iotobenzene, and fluorobenzene. So even if some other group is present, then they could not play the important role of having a basic or the parent name. For example, this compound will be named as in common, अगर हम common nomenclature लेंगे तो it will be named as metachlorotoluene. अगर हम IUPAC लेंगे तो it will be named as either 3-chlorotoluene or 1-chloro-3-methyl 1-chloro-3-methyl benzene. These will be the name of this particular compound if required. Okay. As far as their physical properties are concerned, they do not exhibit anything exceptionally different. But yes, as a reminder, we again need to see their boiling point and melting point of a dichlorobenzene as it is given in NCERT. So we expect कि हमें पता होना चाहिए orthodichloro, meta-dichloro, and para-dichlorobenzene. If these three are present like this, then boiling point in Kelvin is as expected 453, 446, 448. Not much difference I would say between meta and para. हाँ ठीक है, आर्थो का is more वो दिख रहा है. But melting point देखो, melting point की जब बात की गई, so this is 256 Kelvin, this is 249 Kelvin, and this is 323 Kelvin. Just check the high melting point of para. Okay, boiling point is highest of ortho, but melting point highest is of para. And this is because in case of packing, melting point for melting point we consider packing. In case of packing, more symmetrical the structure is, better will be its packing. Okay, so 323 is the value. For boiling point हम इसे याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा आ रहा है ऑर्थो का OPM, OPM, and for melting point order is POM, POM, OPM and POM. Okay, for boiling point it is OPM, and for and for melting point it is POM. This is what you have to keep in your memory. Okay, I hope ये याद रहेगा. Now let us go to preparation of aryl halides. Preparation of aryl halides. Well, as such, there is no special preparation जो हम बहुत अलग से ऐसे बात करें, because in benzene we have already done that. Benzene when treated with iron and halogen, then we get halobenzenes. So that is our standard preparation. Yes, we can prepare it through diazonium
डाइजोनियम क्लोराइड है. If you add Cu2Cl2, you will have pH Cl, Cu2Br2, pH Br, directly Ki, you will have pH I, and HbF4, pH F will be formed. Right? It is HbF4 followed by heating hota hai. That is how it will be formed. Yes, there are some other methods that if you have copper and HCl, then also it is PHCl. Copper and HBr, you will have PHBr. These are called Gattermann, and these first two are called Sandmeyer method of preparation. इसका कोई नाम नहीं है. This is called Balz-Schiemann method. These are the standard methods of preparation of aryl halides. Okay. हाँ, इससे आगे आपको लगाना है like not on the halogen, तो फिर हमारे पास दूसरे methods हैं NBS, SO2Cl2 वगैरह. That is when you want to add further to the toluene. Okay, उसके लिए है, otherwise कुछ भी नहीं. Now let us go to the properties. Properties of aryl halides. हालाइड्स ना, जैसा हम अल्काइल हैलाइड को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये हमें दिखाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वैसे ही प्रॉपर्टीज हम यहाँ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कैन दे एग्जिबिट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. राइट, वी कैन एक्सपेक्ट सिमिलर बिहेवियर कि क्या यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मिल सकता है क्या, है ना. तो हम बात ही सबसे पहले कर रहे हैं SNAR, nucleophilic substitution on aromatic ring. It is also called SNAE क्योंकि it is also addition followed by eliminations. SNAE आपको सिर्फ यही नहीं मिलता, एसिड डेरिवेटिव्स में भी मिलता है जहां पहले एडिशन और फिर बाद में एलिमिनेशन होता है. ओके, बट इसको भी आप SNAE कह सकते हैं. सो एग्जैक्टली हम क्या बात करना चाहते हैं SNAE से, या इस तरीके से लिखकर हम कहना चाह रहे हैं इफ आई हैव फॉर एग्जांपल क्लोरोबेंजीन लाइक दिस, और अब मुझे इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है, मुझे सब्स्टिट्यूशन कराना है. सो माय इंटेंशन इज दैट दिस न्यूक्लियोफाइल शुड अटैक ऑन दिस कार्बन जहां पर क्लोरीन अटैच है. पाई ओपन हो जाए, पाई ओपन हो जाए तो Cl न्यूक्लियोफाइल माइनस चार्ज यहाँ आया इस तरह से. Yes, it is a resonating structure जैसा हम बना सकते हैं further resonance to other two more places I can have. As it was found by Mesenheimer, so it is also known as Mesenheimer complex. जैसे EAS के complex को हम Wieland intermediate कहते हैं, ऐसे ही SNAR के complex को हम Mesenheimer complex कहते हैं. It is also known as sigma complex of SNAR. It is also known as sigma complex of SNAR. हमें इस नाम से भी इसको कह सकते हैं. Okay, so either it is Mesenheimer complex or it is sigma complex of SNAR. जब ये रिएक्शन इस तरीके से हो, this is our step number 1. Okay, ये जो अभी हमने लिखी है, ये step number 1 हुई है, that nucleophile has attacked. Step number 2 is that this Mesenheimer complex, this is very important. SNAR is very important. So be very careful while listening. Step number 2 is that halogen leaves like this and nucleophile sustains और halogen इस तरह से निकल जाए. This is what our second step is. RDS of this reaction is found to be first step, that is attack of nucleophile on halobenzenes. Okay, now ये attack अगर RDS है तो definitely anything that will
increase, that will facilitate the attack of nucleophile on aryl halide, हमारा SNAR का रेट बढ़ जाएगा, बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा. That is all okay. But now the point is कि कैसे होगा ये, कैसे बढ़ेगा ये, है ना? और क्या-क्या हमें देखने को मिलेगा. अगर कोई भी ग्रुप नहीं है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल इफ आई वांट टू से कि मैं क्लोरोबेंजीन को NaOH से ट्रीट कराऊं, दिस इज कॉल्ड डाउस मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. इंडस्ट्रियल मेथड एक समय हुआ करता था ये. ओके अगर हम इसे NaOH से ट्रीट कराते हैं तो जस्ट लुक एट द टेम्परेचर 623 Kelvin we need. Okay, temperature required is 623 Kelvin. Pressure required is 300 atmosphere. जब पूरी रिएक्शन हो जाए तो यस फॉलोड बाय H प्लस, क्योंकि कंडीशंस बेसिक हैं तो हमें फिनॉक्साइड मिलेगा, फिनॉल बन जाए. ओके दिस वाज वंस अपॉन अ टाइम, है ना, दिस वाज इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ फिनॉल प्रिपरेशन. एक समय कभी, ऑफ कोर्स नाउ ये नहीं है, क्योंकि इसके मेथड से अगर हम फिनॉल बनाएंगे तो फिनॉल विल बी वेरी एक्सपेंसिव. मेंटेनिंग दिस टेम्परेचर, दिस प्रेशर इन इंडस्ट्रीज विल कॉस्ट अस अ लॉट. सो ये पुरानी कहानी है. आज हमारे पास बेहतर तरीके हैं. हम क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड मेथड लेते हैं, जो मैं फिनॉल की टीचिंग में ऐड करूंगी. ओके सो इस तरीके से हम यहाँ रिएक्शन कराएं. अब हमारे क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले why SNAR, okay, why SNAR is very difficult, or I can say aryl halides are extremely less reactive towards nucleophilic substitution. है ना? ये जो मैं 4 पॉइंट लिख रही हूँ, मैं एनसीईआरटी को फॉलो कर रही हूँ. एनसीईआरटी में ये 4 पॉइंट ऐसे कैसे हैं. सो हम उन्हें 4 ऑप्शंस की तरह से एक्सपेक्ट करते हैं क्वेश्चन में. पॉइंट नंबर 1, ओके, पॉइंट नंबर 1 इट सेज इज द रेजोनेंस इफेक्ट. पॉइंट नंबर 1 इज रेजोनेंस इफेक्ट. सो व्हाट इज देयर इन रेजोनेंस इफेक्ट? रेजोनेंस इफेक्ट में क्या होगा? देखो बेटा, रेजोनेंस इफेक्ट में हम ये कह रहे हैं कि यहाँ जब हैलोजन है तो PDE of this bond is high due to resonance. This is our point कि resonance effect यहाँ पर इस तरह से resonance होने से pi electrons conjugation में है रिंग के, ओके, और इससे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है इस बॉन्ड के अंदर, एंड सो द रिएक्शन बिकम्स डिफिकल्ट. सेकेंड इज हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CCl और CX बॉन्ड. जब हम यहां बात करें तो PHX में ये sp2 है. ओके सो अगेन PDE is increased, तो रिएक्शन हो गई डिफिकल्ट. ओके थर्ड, अगर ये SN1 से जाने की कोशिश करेगा तो फिनाइल कार्बोकटायन will be unstable, है ना. अगर हम सोचें कि PHX है, ये इस तरह से चला गया और ये बना, सो दिस इज अनस्टेबल, दिस इज अनस्टेबल, therefore EACT will be high. इसलिए एक्टिवेशन बैरियर जो है वो ज्यादा हो जाएगा. एंड द लास्ट पॉइंट इज न्यूक्लियोफाइल approaching
benzene ring of pH X will be repelled by its pi electron cloud. Okay, it will be repelled and therefore हाँ बैरियर फिर से ज्यादा हो गया उसको वहां तक पहुंचाने के लिए. सो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये डिफिकल्ट कर देते हैं SNAR को. राइट नाउ द पॉइंट इज कि क्या चीजें SNAR को फैसिलिटेट कर सकती हैं. ठीक, फैक्टर्स सपोर्टिंग SNAR और SNAE. यहां पर SNAE ऑन एरोमेटिक रिंग बात हो रही है. सो और SNAE. फर्स्ट, order of reactivity for pHx will be, कैसा होगा? Order of reactivity for pHx will be, ये ध्यान रखना, PHF, then PHCl, then PHBr and then PHI, which is unlike normal SN1 SN2, क्योंकि SN1 SN2 में order is based on the leaving group nature of halogen, जबकि यहां पर ऑर्डर इज नॉट लीविंग ग्रुप. यहां पर हमें चाहिए RDS क्या है? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. ये जितना -I होगा हैलोजन उतना इस ग्रुप पर, इस कार्बन पे डेल प्लस का मैग्नीट्यूड विल बी हाई. More the magnitude of del plus on that particular site, more will be the ease of attack. Okay, उतना ही अटैक जो है वो बेटर होता चला जाएगा उस पर्टिकुलर जगह पर. दैट इज व्हाई ऑर्डर इज PHF, PHCl, PHBr and then it is PHI. ठीक. Point number 2 is, this is very important, introduction of minus, yeah, I would say electron withdrawing groups on ortho para position of leaving group will increase the rate of SNAR. Okay, introduction of electron withdrawing groups on ortho and para position of leaving group will increase the rate of SNAR. जैसे अभी अभी मैंने तुम्हें कहा था कि जब आप सिंपल क्लोरोबेंजीन पर रिएक्ट करा रहे हैं, NaOH फ्यूज्ड लगता है आपको 623 केल्विन and 300 ATM pressure. This is just too much. Okay, बहुत ज्यादा है. और फिर आपने H+ यूज करा, आपको फिनॉल मिला, बढ़िया है. पर अगर आप एक भी नाइट्रो इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दें, इफ यू हैव ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नाइट्रो इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, ओके, सेम रिएक्शन हो रही है, SNAR ही हो रहा है, NaOH, but now you can have it at 443 Kelvin. Same way followed by H+, you will have PHOH NO2. See the decrease in temperature from 623 to 443. I can say roughly 200 degrees का decrease हुआ है. Okay, मैं और आगे बढ़ जाऊं, एक और नाइट्रो लगा दूं. If I add further nitro by the same method, इसी तरीके से NaOH 368 केल्विन और उसके बाद H+, OH, NO2 and NO2. Okay, see the decrease, 368 Kelvin. Further, there is a decrease. Okay, there is a further decrease of almost, I think, इसको मैं 370 ले लूं तो 30 degrees इधर, right? और उधर 40 ले लूं तो 70 degrees further decrease, 270 degree का decrease हो गया है. And if I have 3 nitros attached to the ring, if I have
3 nitros like this attached to the ring. और अब इस पर हम करें काम, आपको कुछ NaOH स्ट्रॉन्ग फ्यूज टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी नहीं, जस्ट वार्म विथ वाटर, आप वार्म भर कर दीजिए और ये रिएक्शन हो जाएगी एंड यू विल हैव पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन जाएगा. पिक्रिक एसिड विच इज 2,4,6 trinitrophenol is formed. Is that clear? ठीक. Now the point is कि ऐसा क्या कर दिया इसकी प्रेजेंस ने कि रिएक्शन इस तरीके से होने लग गई, इसकी प्रेजेंस यानी नाइट्रो की. So I think all of you can understand that nitro or cyano or carbonyl, such groups if present on orthopara will definitely increase the del plus polarity on the site जहां हमें चाहिए. Okay? तो वहां हमारे लिए आराम से न्यूक्लियोफाइल अब रिपेल नहीं होगा, अटैक हो पाएगा. दूसरा जो नेगेटिव चार्ज आता है ना, जो नेगेटिव चार्ज आता है न्यूक्लियोफाइल के अटैक से, वो रेजोनेट कर पाएगा टू दीज ऑल ग्रुप्स. इज दैट क्लियर? तो उस रेजोनेंस से भी हम रिएक्शन का यूज कर पाएंगे. इज दैट क्लियर? कि तब हम इस तरीके से इसे रेजोनेंस में ले पाएंगे. इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल? कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट? तो दैट इज व्हाई वी यूज ऑल दिस मेथड कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हम अटैच करें. अब ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होगा, अरेंज द फॉलोइंग, arrange the following in decreasing order of reaction with NaOH या SNAE या SNAR. इस तरह की चीजें लिखी मिलेंगी. तो ये सब तुम्हें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन द रिंग पर इंडिकेट करेगा. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव फ्लोरीन और नाइट्रो आपको दिया गया है, देन यू हैव फ्लोरीन एंड नाइट्रो यहां दिया हुआ है. ओके, फ्लोरीन ऑन मेटा, फ्लोरीन ऑन फ्लोरीन के बाद पैरा पे NO2 है एंड सिमिलरली फ्लोरीन NO2. आंसर विल बी ऑर्थो पैरा मेटा. ऑर्थो थोड़ा सा ज्यादा और इसलिए क्योंकि यहां से मोर माइनस आई भी मिलेगा फ्लोरीन को, तो डेल प्लस ज्यादा होगा इसलिए. ओके, देन यू कैन हैव क्वेश्चंस लाइक फ्लोरीन NO2, bromine NO2, chlorine NO2. आंसर इज 1 greater than 3 greater than 2, क्योंकि जितना ये ज्यादा माइनस आई है उतना ये मतलब हेलोजन उतना रिएक्टिविटी फास्ट है यहाँ पर, इसलिए this is how it will react. F's, then Cl, then Br. Okay. SNAR besides ring is also important for pyridine. है ना? It is easily observed on pyridine. It is easily observed on pyridine. pyridine पे ऐसा क्या खास है? Well, pyridine पे बड़ा location -R of halogen. It is so very easy. अगर आप इस पर कराएंगे तो ये बिहेव करता है लाइक क्योंकि यहाँ पर अगर तुम देखो तो ये माइनस आ रही है, डेल प्लस डेवलप होता है. सो इस जगह पर इस तरीके से NaOH से रिएक्शन करवाना और फिनॉल बनाना है ना, दिस इज मच इजियर. दिस इज मच इजियर. और ये SNAR कहाँ से हो पाएगा? फ्रॉम पोजिशन ऑर्थो, और आई शुड से पोजिशन 2, 4 and 6 पोजिशन.
are good for SNAR. ये दोनों पोजीशन SNAR के लिए pyridine में बहुत ही अच्छी होंगी. Right? So that is all about SNAR, nucleophilic substitution on aryl halides. That was our reactivity or reaction point 1, SNAR. Now let us move to reaction 2. Second reaction, I think all of you know, is EAS on PHX. The important point that you have to remember is, first, halogens are orthopara, directing and deactivating. Right? Second point is reactivity order. Reactivity order is PHF greater than PHCl greater than PHBr greater than PHI. Third point, OP ratio is F less Cl PR I. ये 3 पॉइंट इसमें हमें याद रखना है. And yes, aryl halides do give Friedel-Crafts reaction. ठीक, ये हमारी करा हुआ पोर्शन है. आई एम नॉट इन्वेस्टिंग मच ऑफ टाइम हियर. देन इसके बाद हम आते हैं जो रिएक्शन फिर से तुम्हें आनी चाहिए, वो है वुड्स-फिटिक, है ना. वुड्स-फिटिक कौन सी रिएक्शन है, आओ देखें. उसमें हमें लेना होता है PHX, राइट. PHX होगा सोडियम और एक अल्काइल हैलाइड in the presence of dry ether, formation of PHR plus NaX. This is Wurtz-Fittig. Okay, और इसी का ही वर्जन है फिटिग. फिटिग ऐसा कुछ अलग नहीं है, लेकिन हम एंट्री करें नोट्स में फिटिग रिएक्शन. राइट, फिटिग रिएक्शन में हमें दोनों एरोमेटिक लेने होते हैं. मतलब अगर 2 मोल्स ऑफ PHX सोडियम के साथ ट्रीट कराए जा रहे हैं, ether, again dry, it has to be no moisture, then this is called Fittig reaction. Yes, it would be relatively difficult, वो point रहेगा वहाँ, but then also this is what is called Fittig reaction. Okay, point number 5, which as such has said in the JEE brochure that they are not going to ask, but हमारे यहाँ आएगी, is Benzene mechanism. I'll brief you in 15 minutes, not more than that. It is known as SNEA. It is elimination addition. Okay, it is elimination addition reaction. Benzene mechanism कैसे क्या, देखो सबसे पहले कहाँ पाया गया. जैसे हमने फ्लोरोबेंजीन लिया, यहाँ ड्यूटेरियम था. When this was heated strongly with NaNH2 in ammonia, slight ammonia, इसमें heat करा, we expected that we should get just this, है ना. Expected, और rather यहाँ लिखने की जगह I'll write this as compound 1. We got NH2 और D थोड़ा दूर चला गया, यहाँ पर आ गया compound 2. Okay, and of course we also got something where there was no D. Okay, so what we expected was only 1, but what we observed was 1 plus 2 plus 3, तीनों मिले.
सो तीनों का मिलना इज इंपॉर्टेंट। ये तीनों कैसे आए? ओके, सो दिस इज बेंजाइन मैकेनिज्म। यहां अब हम देखते हैं बेंजाइन मैकेनिज्म। पहले मैं जनरल बताती हूँ, फिर देखें। आओ बात करें मैकेनिज्म ऑफ this type of reaction. Beta, for example, if I have chlorine, if I have fluorine, and we treat it with a strong base, that strong base should be very strong. It should be an NH2, it could be PHLI, it could be something like BULI. है ना, ये कुछ strong powerful base होना चाहिए. So what is observed is it will abstract NH2 minus H plus. Cl is there, anion is formed, elimination start हो गया है, and then this loses and a benzene is formed. Benzene is formed. ठीक है, ये हमारी फर्स्ट स्टेप है इसकी, एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन इज आरडीएस, यही स्टेप आरडीएस भी है। और इस स्टेप की इनिशिएशन हो रही है बाय एब्स्ट्रैक्शन ऑफ दिस एच, है ना। जो आरडीएस है उसकी भी शुरुआत जो है, जो मेजर पॉइंट है वो है ये एच का हटना। इस एच का हटना is dependent on minus I of this halogen. So with increase in minus I of X, the rate of benzene formation increases, right? Therefore, reactivity order will be PHF, same as aryl halide, PHCl, PHBr, PHI. Okay, again we will have a same reactivity order, PHI. Okay, important point है हमारे लिए, क्योंकि हम नॉर्मल SN1 SN2 से देखें तो ऑर्डर शुड बी जस्ट रिवर्स, पर यहाँ ऐसा नहीं है। ओके, PHFClBrI। दूसरी स्टेप होती है इसकी एडिशन, कि बेंजाइन तो बन गया, अब आगे क्या? तो देखो बेंजाइन बेटा तुमने 11th में भी पढ़ा था, is aromatic, but this third bond is a problem. So either it exists as a biradical or it will exist as zwitterion plus minus. It will exist as a zwitterion. और अभी तो क्योंकि मेरी कोई पोजीशन या आइसोटोप का अंतर नहीं है, तो मैं प्लस माइनस ऐसे लिखूं या अपसाइड माइनस और डाउन साइड प्लस लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अदरवाइज उसका भी इफेक्ट हो सकता है, देयर कुड बी अ चांस। ओके, तो इस तरह से ये बना। अब हम जब अमोनिया की प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, है ना, जब हम अमोनिया में बात कर रहे हैं तो प्लस माइनस, अमोनिया ने इस पर एडिशन शुरू करा इस तरीके से। एडिशन इस तरीके से इनिशिएट हुआ, यहां पर आया NH3 प्लस माइनस, and then there is a intramolecular proton exchange, IMPE is intramolecular proton exchange. So here we have NH2. Correct. So this is how the entire chlorobenzene is converted to aniline. Though it is relatively difficult reaction, मुश्किल reaction है, but possible तो है ही, हो सकती है। ठीक है, सो बेंजाइन तुम तब देखना जब अराइल हैलाइड्स पर स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस के बाद कोई चीज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में दे रखी है, तो देन यू विल हैव बेंजाइन मैकेनिज्म। अब सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइन की बात करती हूँ। ओके, इफ आई हैव अ ग्रुप प्रेजेंट ऑन रिंग,
फिर कैसे बनेगा? ओके, बेंजाइन mechanism for substituted PHX. Substituted मतलब एक ग्रुप और प्रेजेंट है। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेट अस गो वन बाय वन। ये ग्रुप जो है ये ऑर्थो पर हो सकता है, ये ग्रुप जो है ये मेटा पर हो सकता है, और यही ग्रुप जो है ये पैरा पर हो सकता है। हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं। ओके, फर्स्ट स्टेप हमने एलिमिनेशन कराना शुरू करी। ओके, हमने कोई बेस लिया, सो हमने NH2 माइनस लिया। मेरे पास दिस साइड तो H है ही नहीं, आई हैव ओनली वन पॉसिबिलिटी ऑफ बेंजाइन फॉर्मेशन। मुझे एक ही पॉसिबिलिटी है यहाँ बने, और इससे मत परेशान होना कि ऊपर तो क्लाउड इधर लिखा है, अब आपने रेजोनेट करा दिया तो हाइब्रिड एग्जिस्ट करेगा। सो विथ रिस्पेक्ट टू IUPAC नंबरिंग हम इसको बोलेंगे 1 2 3 4 5 6। हम इससे बोलने वाले हैं कि ये बनी है 2,3 बेंजाइन। 2,3 बेंजाइन बनी है ना? अब देखो, इफ G इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और EWG कोई सी भी हो, है ना, there is no choice, so always 2,3 benzene is formed. Similarly जब मैं यहां बात करूंगी तो यहां भी मेरे पास कोई चॉइस नहीं होगी, राइट? मैं लेफ्ट जाऊं या मैं राइट जाऊं, मेरे पास चॉइस नहीं है। और यहां पर भी इसी तरह की बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 मेरे पास ऐसी कोई चॉइस नहीं है, और मेरे पास 3 4 बेंजाइन ही बना करेगी, राइट? यहाँ पर मेरे पास ऐसी कोई चॉइस नहीं है, और 3,4 बेंजाइन यहाँ खूब बनेगी, है ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ERG और EWG। बट ये जो मेटा पोजिशन वाला है, मेरे ख्याल से यहाँ मेरे पास दोनों चॉइसेस आ सकती हैं। आई कैन हैव फॉर्मेशन ऑफ 2,3 बेंजाइन, और I can have formation of 3,4 बेंजाइन, दोनों बन सकती है, राइट? अब इन दोनों में से हमें सोचना है अगर G कैसा हो, मैं इसके लिए कमेंट लिख रही हूं। सो इफ G इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो देखो रिलीजिंग है तो ऑर्थो वाला H जो है, एंड हियर वी आर मेनली कंसर्न अबाउट द इंडक्टिव्स, राइट? हमें इंडक्टिव से मतलब है इफ G इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, है ना, then 3 4 benzene is major, benzene is preferred, and if G is EWG, then 2 3 benzene is preferred. All of you agree, है ना? तो ये हमारा हो गया है फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइन। अब हम करने जा रहे हैं एडिशन, राइट? दिस इज एलिमिनेशन पोर्शन हमने करा, अब हम उसमें ऐड करेंगे अमोनिया को। उसमें भी हो सकता है ERG EWG का काम पड़े। सो स्टेप 2 की बात करने जा रहे हैं, मैं यहाँ लिखती हूँ एडिशन। जब एडिशन की बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ 2 ही तरह की बेंजाइन पाई हूँ। सो आई विल राइट फर्स्ट, अगर 2 3 बेंजाइन है तो कैसा एडिशन देखेंगे। If benzene is 2 3, right,
लेट मी ड्रॉ, उसके दो स्ट्रक्चर्स विट्रायन हो सकते हैं, एक प्लस माइनस या माइनस प्लस, राइट। इफ दिस विल बी, अगर अमोनिया इसके बाद ऐड हुई तो हमारा नेट आंसर आया है ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमोनिया, और अगर इसमें गए हम तो मेटा substitution of ammonia will be observed, right? So if G is ERG, then ortho product will be formed. Ortho product will be formed as major, है ना, क्योंकि हमें फॉर्मेशन में तो चॉइस थी ही नहीं, आरडीएस में तो ERG EWG का कोई मीनिंग ही नहीं था, तो बना तो अगर 2,3 बेंजाइन है ऑर्थो में, है ना, और वो ERG है, तो मुझे ऑर्थो टू ऑर्थो मिलेगा। It means what I want to say, if this was releaser, halogen यहाँ है और इसको आपने NNH2 in ammonia में treat कराया है, heat of course is there, so you will get major product as ortho. If it was withdrawing, then आपको product मिलेगा meta, right? So if G is electron withdrawing group, then meta product will be the major product. Is that okay? है ना? This was with 2,3 benzene. अब आते हैं हम second case कि if benzene is 3,4. If our benzene is 3,4 benzene, तो कैसे reaction proceed करेगी? Same process ही हमें करना है. So if I have 3,4 benzene, then my two choices would be plus, minus, or plus, minus. This will result in meta product. This will result in para product. Right? So if G is electron releasing, then meta products are formed. Are formed. If G is EWG, then para products are formed. Okay, then para products will be formed. So अब G could be ERG or EWG, but anyways हमने ऑर्थो में पहले ही देख ही लिया है. 3,4 was formed in meta. So if my original structure is meta, है ना, and if G is ERG, तो final product will be meta. If G is EWG, then our final product will be para. Correct? I think ये समझ आया होगा. मजा देखो, मेटा का ओवरऑल इंटरेस्ट देखो. ठीक, I shouldn't have written it like this. I would rather write it from para. कि अगर para है और ERG है
तो ये बनेगा। और मेटा, बोले मेटा क्यों हटा दिया आपने? मेटा इसलिए हटा दिया बेटा, मेटा में बड़ा जादू है। आप मेटा में शुरुआत करो, अगर ERG है तो वॉट एवर रीजन्स में बी इट विल बी मेटा प्रोडक्ट। बोले रीजन्स वॉट एवर, अभी तो बताए रीजन्स। हाँ अभी पता है, लेकिन तुम थोड़ा ध्यान से तो सुनो। अगर G is electron releasing, then benzene formed will be, if it is electron releasing, then benzene form will be 3,4, and 3,4 benzene में अगर electron releasing group होता है तो answer is meta. If G is electron withdrawing and structure is meta, then 2,3 is formed. And in case of 2,3 जब EWG होता है तो answers are again meta. तो आप कहीं से भी शुरू करो, बेंजाइन पर अगर आप जाओगे तो मेटा ही मेटा पाओगे। ओके, सो यू विल ऑलवेज एंड अप टू मेटा। आप कहीं से भी इसमें शुरू करो, ये जादू सा है इसके अंदर। इज दैट क्लियर? ठीक, सो दिस वाज टोटल ऑफ आवर अराइल हैलाइड्स। यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के लिए लिख रही हूँ DDT. DDT, it is commonly named compound as DDT. It is para dash dichloro diphenyl trichloro ethane. Para dash की जगह it should have been 4,4 dash. Then it will become IUPAC. है ना? This was used initially for mosquito killing spray वगैरह, but then it got into food cycle, and it was found to be poisonous, so it has now been banned. यूनाइटेड स्टेट ने 1973 में ही इसे बंद कर दिया था, लेकिन वर्ल्ड के कुछ हिस्सों में आज भी यूज होता है। दैट इज डिस्क्रीट ऑफ देयर चॉइस, हम उसमें नहीं जा रहे। हमें करना है प्रिपरेशन ऑफ DDT। ठीक, देखो CCl3CHO, this is called chloral in presence of H2SO4 एंड क्लोरोबेंजीन। ये एराइल हैलाइड की रिएक्शंस में आ सकता है, इसलिए हम कर रहे हैं। ओके, जब हम इनकी आपस में रिएक्शन कराते हैं देन DDT इज फॉर्म्ड। सवाल है कैसे? आओ कराती हूँ मैकेनिज्म। CCl3CHO प्लस H2SO4 का H प्लस। सो ये अटैक CCl3 CH double bond OH plus is formed, right? अब देखो ये बड़ा इलेक्ट्रोफाइल का फंक्शन करेगा हमारा क्लोरल प्रोटोनेटेड स्ट्रक्चर, राइट? सो अब पैरा से हमारी क्लोरोबेंजीन इससे अटैक करने वाली है इस तरीके से। सो व्हाट विल हैव इज CCl3CHOH और यहाँ पैरा पे क्लोरीन आ जाएगी। ओवरऑल येस हो गया, मैं सारा स्टेप्स नहीं लिख रही हूँ, बट मीडियम इज H2SO4. So again I will have protonation. CCl3 CH OH2 प्लस, ये बना मेरा फिर से एक इलेक्ट्रोफाइल की तैयारी शुरू हो गई है। अगेन इफ क्लोरोबेंजीन सेम वे फ्रॉम पैरा अटैक करे और ये वाटर को हटा दे, तो देखो CCl3 CH Cl DDT is formed. ओके, और इसको नेट रिएक्शन की तरह से तुम याद रखोगे, और भी इजी कर देते हैं इसे। अगर इसे तुम्हें नेट रिएक्शन के फॉर्म में करना है तो देखो कैसे कर सकते हैं डायरेक्टली। मैंने तुमसे क्या कहा? CCl3 CHO प्लस
क्लोरोबेंजीन की ये पैरा पोजिशंस, इस तरीके से H2SO4 के अंदर हीट देते बहुत बढ़िया, लेकिन तुम हीट के लिए रुकना मत कि हीट नहीं दिया है तो हमने नहीं बनाया, ये काम मत करना। ये H2O देखो डायरेक्टली हटा सकते हो, नेट रिएक्शन। इससे तुम्हें DDT का स्ट्रक्चर भी याद हो जाएगा। ये बन गया हमारा CCl3 CH पैराक्लोरो पैराक्लोरो। Okay, so this is how our DDT is formed. DDT is formed. Okay, तुम्हें नोट्स में से एनसीईआरटी में से सॉरी फ्रियॉन्स और थोड़ा सा देखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए इनके बारे में। ज़रूरत पड़े तो 11th का एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एक बार वहाँ फ्रियॉन्स का यूज़ देखना कि कैसे ये पोल्यूटेंट्स हैं, है ना, दे आर पॉल्यूटेंट्स। ठीक, सो ये हमारा अराइल हैलाइड हुआ खत्म। Do this and read NCERT.